Noida, the city is not stopping. You bring a project, the project gets sold. Beautiful roads, nice infrastructure, well designed, and the greenery. इतनी अच्छी सिटी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबली द बेस्ट है पूरी इंडिया में, इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आपको ले चलूंगी सीआरसी नॉलेज फोरम में, जहां पे दिग्गज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार नोएडा में क्यों हो रही है इतनी ग्रोथ। फिर चाहे हम बात रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की करें, कमर्शियल की या फिर ऑफिस स्पेसेस की। सो लेट्स चेक इट आउट। Today's event aims to discuss the future prospects of Noida, and I'm very happy that we have not just with us an eminent panel, but one which is very balanced. So we have stakeholders from across the developer community, the real estate consultants, and retailers of eminence. Noida still has this USP of providing accommodation for literally every segment of society. So what is getting absorbed in this market, Ajay, and which segments are gaining maximum traction? It would be really nice to get an overview of the real estate market, not excluding the residential. So Noida, a landscape of 1400 square kilometers. If you have to draw down a local or a catchment or a small micro market, I still call Noida. It is on 7 different clusters which the city has grown into. The city grew all on 0 day. There was never a milestone which will come up in 5 years. Everything came with the infrastructure in the city, and somebody started at the early stage, somebody started at a few years down the line, but the city evolved at 0 day, and today everything in parallel, all the micro markets have grown to their best of capacity as per the infrastructure they had and as per the target audience. The surroundings they have all grown and still growing. Started with Sector 18 as the benchmark for the city and going up to Noida Extension, Greater Noida West. The city is not stopping. You bring a project, the project gets sold. The corridor where we are sitting right now, between Pari Chowk and Sector 18, there is no mall. There is no hub. This is a 70-acre hub comprising of 7 million square feet, 2 million, I think, retail, 5 million office with 70-acre hub. And there is nothing in between the expressway up to Sector 18. So in 2 to 3 years, I think this catchment has grown. Price points have gone 30% ROIs on both residential and office. Retail, like CRC, they want to hold the assets, but definitely it's not on startup. But eventually, if the brands are picking up on pure rental deals, the cap values are very high right now at the sectors. Well, great perspectives. That's interesting. I want to now come over to you, Manik, and I find it really interesting in the chat we had just before the session, you mentioning that you live in Noida and you work in Gurgaon. So you are the person who would know the two suburbs. I mean, I'm compelled to compare the two simply because they are both suburban extensions of the capital city, and they are born at nearly the same time. You know, one in 1979 and the other, of course, in 1976. So how do you compare? How do you look at the two, and how do you look at its evolution? I first want to see how many people from Gurgaon are here because I don't want many heartbreaks. 1, 2, 3. Chalega. That's a good ratio. I can manage with the rest on my side. So, I'm born and brought up in Delhi, and there was a time I wanted to choose to move out of Delhi because I wanted to move into a gated community which can give quality lifestyle to my family, especially when kids are growing. I failed to find that kind of atmosphere in Gurgaon at that time, particularly because there are great gated communities in Gurgaon, but the infrastructure outside the community is pathetic. You know, I go to Gurgaon, but if my office is just 1 kilometer away from the highway and it's raining, it takes me 2 hours and I still may not reach my office. I think in Noida, what I've seen for last, after being grown up kid, every time there was a new development that was getting launched, whether it's residential or whether it's commercial,
the sector road was always developed within 6 months' time. You know, which means whether you're investing in a residential place or anywhere else, which is the first basic that any of us needs it, right? And I don't see waterlogging happening on Noida roads since then. So it's beautiful roads, nice infrastructure, well designed, and the greenery. So it's interesting that Noida offers a more variety or, you know, something for everyone kind of a thing, for affordable, for premium, for luxury. And but you, Salil ji, are focusing more on grade A, and the building in which we are sitting right now is also grade A commercial space, but a very nice building. And the coming of the Noida International Airport, that is surely going to spell good news for business opportunities. How do you read the real estate potential of Noida unfolding, specifically given the growth drivers, the manpower potential, and all the factors which you can थैंक यू। take on? तो दोस्तों, पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा, जैसे किरण जी ने राष्ट्रगान से शुरुआत की, उसमें नेशनल फ्लैग यहाँ डिस्प्ले में था। तो हम सीआरसी का कोई भी प्रोजेक्ट देश में नाम के लिए करना चाहते हैं कि हमारा देश एक इंटरनेशनल लेवल में आए कि यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। बिलीव मी एवरीवन, हमारा हर प्रोजेक्ट नेशन के लिए एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहेगा। इस कमिटमेंट के साथ हम अपने कॉमर्शियल और आगे आने वाले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे लाने की लिए कटिबद्ध हैं। वी आर प्रॉमिस्ड। हम अफर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका डिज़ाइन ऐसा बना रहे हैं, हम उनके साथ आर्किटेक्ट ले रहे हैं, उन्हें फैसिलिटी ऐसी ले रहे हैं कि अगर फ्यूचर में गूगल सर्च में हमारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हमारे रेजिडेंसेस का नाम जरूर आएगा। ये हमारा प्रॉमिस है आप सब। तो दोस्तों, नोएडा का प्राइस सेगमेंट या ऑक्यूपेंसी रेट कम होने का एक ही रीज़न था कि हमारे पास एयरपोर्ट नहीं था। जो भी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओज आते थे वो T3 पे उतरे, गुड़गांव 10 मिनट में पहुंच गए, हमारे यहाँ DND तक आते आते यू टर्न मांग लेते थे, वापस चलो। एग्जैक्टली यही होता था। आज हमारे पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 से 7 महीने की दूरी पे है, खाली बिल्कुल तैयार है। टेस्ट फ्लाइट अगले महीने चल रही है। तो और दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड और प्रोबेबली फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इतनी अच्छी सिटी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबली द बेस्ट है पूरी इंडिया में, इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट आगे खड़ी है, इनकी बड़ी डिफरेंट की सी डिमांड आने वाली है, जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, कोई आज 4 बेडरूम से नीचे घर नहीं पसंद कर रहा है। गाड़ी कोई 25, 30, 35, 50 लाख से नीचे नहीं ले रहा है। घड़ियाँ 10,000 वाली, एक जो कॉमन रीच वाले भी 60, 70, 80 हज़ार की घड़ी पहन रहे हैं। यानी कि हमारी इनकम जैसे जैसे देश की जीडीपी बढ़ रही है, हमारी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बहुत अच्छी हो रही है। तो ओबियसली परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आगे आने में हमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट की डिमांड आने जा रही है, विच इज़ एब्सोल्यूट हाई ग्रेड। तो ये आंसर है नम्रता जी के सवाल का कि हमने बहुत रिसर्च करी है ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, और आगे देयर इज एब्सोल्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेड ए प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, इन द नोएडा एज वेल। तो अभी तो मैं बात ग्रेड ए की कर रहा हूँ दोस्तों, आगे कुछ महीनों या सालों में आपको ग्रेड ई सुनाई देगा। ग्रेड ए के बाद एक्सेलेंट ग्रेड वाला, उसकी डिमांड आने जा रही है। उस तरह की भी हाउसिंग हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं जिसका ग्रेड ई होगा। डेफिनेटली मेक द नेशन प्राउड फॉर दैट। थैंक यू। So picking one of the threads of what Salil ji mentioned, Gen Z, Deepak,
what does the Gen Z want in terms of mall? What does the Noida consumer want, and what does it take to make a shopping mall or a departmental store or any organized retail activity successful in a city like Noida? Ajay very nicely said about the opportunity Noida market has, and I will focus on Noida, not about India. So I'll give you some interesting facts. So if you see compounded annual growth rate, CAGR in India today, Mumbai, Pune, Bangalore, they have reached where they have to reach. The highest CAGR in country today is in Hyderabad, Gurgaon and Noida. So this clearly indicates the growth is in 3 cities. Second, if you see consumer profile in Noida, we opened our first shopper stop in Great India Place Mall in 2006. And in 1 year time, we were like struggling, what are we doing? And we used to get 70% customers from Mayur Vihar and Patparganj in East Delhi. That store in 2010, where we were struggling, touched 100 crore in 2010, and 60% customer eventually started coming from Noida. From that journey to today journey, if I see, highest amount of growth, if you are seeing in North anywhere, is Noida and Gurgaon, both. In fact, we have decided not to open any department store in Delhi city because growth is shrinking in Delhi, and the new kind of customers, what we are seeing is in Noida. So let's focus on the office leasing. And Mukt, since you have worked in Gurugram and you worked pan India, of course, but Gurugram versus Noida, what is the nature of companies which want to expand to Noida? Do we have demand for a certain grade of commercial real estate? What is it that the occupiers want? So anything that you can tell about pure office real estate asset from a office occupier point of view would be great. Sure. To be able to, respond to that, I believe that talking only about office or one use of real estate would not, shed adequate light on the way the dwellings and the sociology of, the humans have changed. I heard Deepak say a minute back that once the airport is here, I may not need to, if I'm dwelling in Noida, with the kind of accommodation, with the kind of office complexes, with the kind of co-workings, with the airport available, and the malls and the retail opportunities and the entertainment opportunities available, I would not probably need to leave Noida for an excursion. So it's a sub-city. I therefore don't call it a suburb, but I call it a sub-city. Coming from Gurgaon, and having worked there, I would say between Noida and Gurgaon has a model and Noida has a scale. Talking about the kind of businesses that are moving, you don't need to look far. 2 aspects of businesses, 2 full sectors have moved here. All the lawyers, all the law firms, national law firms, have their office here. They're not, very few of them perhaps would be based in Gurgaon or other parts. The entire TV setup and the marketing setup is all sectorally present only in Noida. So I would sum up to say that I think the opportunities at a 10x scale are huge for Noida. Great, thank you. Sriram, you've helped in the establishment of several malls in North India. What is it that keeps a mall relevant? And what is it about the Noida consumer insight that you can share? I think the relevance is based on a lot of factors which are dependent on starting from the location, design, planning, the way the developers vision to perform and manage the asset. I mean, these are the 4 or 5 things which you need to put across to basically get into understand that the property would remain relevant for a very long time. I think historically, from Noida perspective, the current generation, people who right now are here and living or migrating, their kids have never seen high streets of Delhi or high streets of any other part of the country. I mean, they've grown in situations where there are
more organized establishments like mall complexes, stuff like that, which probably they are habitual to go to. We also know that Noida has one of the largest malls of India, which is the Mall of India, and which gets annual traffic of about 1.8 crore people coming in every year, with over 330 stores across various categories. And apart from that, interestingly, has the highest turnover in NCR of more than 2,500 crores a year. So those consumption and data points showcase that this city has a lot of deep potential. I think that is as much time as we had for the panel discussion. Thank you very much, gentlemen. Can we please, we can give a thanks of moment to every esteemed panelist here by some moment. नोएडा के रियल एस्टेट में क्या हलचल मची हुई है और क्या कुछ होने वाला है, ये सब हमने पैनल डिस्कशन में जान लिया। लेकिन सीआरसी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये जानने के लिए चलते हैं डायरेक्टर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट सलिल कुमार के पास। सर, सीआरसी नॉलेज फोरम एक्चुअली में है क्या और ये कैसे शुरू हुआ? सीआरसी एक ऐसे डेवलपर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है जहां हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ टाइमली डिलीवरी के लिए कमिटेड हैं, और हम एक टिपिकल वनीला मार्केटिंग से हटके थोड़ी सी अच्छी मार्केटिंग के रूप में अपनी पहचान भी देना चाहते हैं। हमने अभी कुछ नॉलेज फोरम की शुरुआत करी है जी, और एक नॉलेज फोरम हमने गुरु गौड़ गोपाल दास जी के साथ किया था जी, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और ये नॉलेज फोरम हम थोड़ी इंडस्ट्री नॉलेज के लिए, जिसमें हम आपस में सभी लोग नॉलेज शेयर करेंगे, रखा गया है। बिल्कुल, ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई है सर। वैसे इस नॉलेज फोरम में नोएडा की जो स्टोरी है, नोएडा आगे कितना बढ़ने वाला है, किस तरीके के प्रोस्पेक्ट हैं, इस पे जो चर्चा हुई उसमें आपका क्या विजन है? देखिए, नोएडा आज भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से और इसकी मास्टर प्लानिंग एक एब्सोल्यूट ग्रीन सिटी के रूप में करी गई है, स्मार्ट सिटी के रूप में करी गई है, तो उसका फ़ायदा हमें एनसीआर में होने का मिल रहा है जी। हम दिल्ली के बहुत करीब हैं और एट द सेम टाइम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आईटी यूनिट्स यहाँ पे अपना हब बना रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर यूनिट्स भी हमारे पीएम साहब ने इनॉग्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत सारी यूनिट सेमीकंडक्टर्स की भी आ रही हैं। तो अगर आप देखें कि आज की डेट में नोएडा में आईटीएस सेक्टर में करीब 7 से 8 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, जो कि अगले से 4 साल से 5 साल में करीब 14 से 15 लाख पहुंचने वाले हैं, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स। जी बिल्कुल सही। तो 15 लाख पॉपुलेशन जो कि आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर यूनिट्स में काम कर रही होगी, विद द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ 15 से 20 लाख पर एनम। तो नोएडा का मार्केट एक डिस्पोजेबल इनकम के रूप में माने तो बहुत अच्छा मार्केट उभर के अगले 4-5 साल में आ रहा है। बिल्कुल सही। सर, नोएडा 5 साल पहले, नोएडा 5 साल बाद, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसको अगर मुझे समराइज करना हो तो अगर 5 साल पहले x था, आज 2x है, और 4 से 5 साल में 3 से 3.5x पहुंच रहा है। ये बहुत सिंपल में 1, 2, 3 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हमारी इसलिए आ रहे हैं कि आज इंडियन ग्रोथ, हम 195 कंट्रीज में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं जी, और आगे 3rd लार्जेस्ट होने जा रहे हैं। आउट ऑफ 195 कंट्रीज 3rd लार्जेस्ट होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होने के साथ हम सबकी जिम्मेदारी है कि नोएडा की ये जो रोबोस्ट ग्रोथ, कंट्री की जो ग्रोथ हो रही है, उनके हिसाब से हम सब गेयर अप रहें। अगर आप देखना चाहें तो देखें कि जनरेशन जी जिसे हम कहते हैं, वो आज कोई भी गाड़ी 20 से 35 लाख वाली खरीद रहे हैं जी, घड़ियां 50 से 70 हज़ार वाली खरीद रहे हैं, हाउसिंग 4 बेडरूम में जा रहे हैं।
विद लग्जरी एमिनिटीज। बच्चों के लिए वो अच्छे स्कूल्स देख रहे हैं, डिस्पोजल इनकम सबकी अच्छी है। तो जनरेशन नेक्स्ट की जो 4 से 5 साल की रिक्वायरमेंट हैं, उसमें नोएडा एक ऐसी सिटी है जो सक्षम है, जो एलिजिबल है हमारी मॉडर्न जेन जी की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द पिक्यूलियर टाइम। राइट। स्मार्ट सिटी भी है, इतने एयरपोर्ट भी आपका पास में 5-6 महीने में बिल्कुल, चालू हो बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट, 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट रादर। तो इतनी जेन जी की जो रिक्वायरमेंट है, ये दिस इज द बेस्ट प्लेस टू मीट देम। तो सब लोग नोएडा की ग्रोथ आपकी जो 5 साल पहले थी उसकी 3 टाइम्स होना बहुत लाजमी है। बिल्कुल सर। सर आप इस ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं? मतलब जो बायर्स हैं, जब आपके पास पहले आते थे और अब जो आते हैं, उनकी डिमांड किस तरीके से बदली है? आज सबकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत अच्छी है, प्लस जेन जी जो इंडिया का 70-75 साल का क्रेडेंशियल्स है, उसको लेके वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मल लोग बहुत अच्छी कैटेगरी मांग रहे हैं। हाउसिंग में A+ ग्रेड, बिजनेस में E+ यानी एक्सीलेंट कैटेगरी, वेरी नाइस ऑफिसेज, मल्टी लिफ्ट्स, गुड ट्रैफिक प्लान, गुड एयर कंडीशनिंग विद यू हैव टू हैव बायोफिलिक एंड वाटरफिलिक फीचर्स। तो ये नई रिक्वायरमेंट्स निकल के आ रही हैं, प्लस डिजिटलाइजेशन और AI का यूज करते हुए आगे सर्विसेज प्लान हो, इन सब की ये रिक्वायरमेंट है जी। और CRC इसमें किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए मैडम, CRC हमारा जो कोर टीम है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट टीम इन द वर्ल्ड। हमारे जब भी जितने डायरेक्टर्स हैं, ये रिसर्चेज में बहुत ध्यान देते हैं, बहुत सारी रिसर्च हम लोग करते हैं और करवाते हैं। उनसे हम आउटकम लेके आगे जो मॉडर्न जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम A+ और E+ ग्रेड यानी एक्सीलेंट कैटेगरी के लिए कमिटेड है। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में हम वर्ल्ड क्लास बहुत फेमस आर्किटेक्ट भी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं आगे, सो दैट या हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हम उन पे बहुत ध्यान देते हैं कि एक एक चीज़, हमारा कैंपेन भी है क्राफ्टेड फॉर यू। यस, वी आर क्राफ्टिंग एवरी प्रोडक्ट very decently, very nicely for our valued stakeholder, valued customers. थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you जी, my pleasure. अगर नोएडा की प्रॉपर्टीज आपको भी लुभा रही हैं और आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट, लेकिन मन में शक और सवाल है, तो चलिए इन सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। सर, ये जो एक डिबेट है नोएडा वर्सेस गुड़गांव, मुझे लगता है दिल्ली वर्सेस मुंबई की तरह ये कभी खत्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है? ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, ये हेल्दी कंपटीशन है। सो अगर आज कोई भी एक एरिया या कोई भी एक पर्टिकुलर वर्टिकल अच्छा राइज करता है, तो रादर देन कि उसके बारे में ये बोले कि वो डिबेट ख़त्म हो जाए, वो ये बोलना चाहिए कि इसकी तरफ देखो और इसको और कैसे बढ़ाओ, ताकि वह सीखते चलो और बढ़ाते चलो जी। सो एक्सपेंशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग is always the key to every success, whether we talk about real estate or any other industry. So गुड़गांव बहुत पहले जब कॉन्सेप्चुलाइजेशन सेम टाइम पे हुआ था नोएडा और गुड़गांव का, बट गुड़गांव के का सबसे मेजर रीज़न था कि उस टाइम पे दिल्ली का जो मेन क्रीम क्राउड था जी, वो गुड़गांव शिफ्ट हुआ था बिकॉज इट वॉज अ टू बी डेस्टिनेशन। राइट राइट। और बैक इन नोएडा उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा। बिकॉज ऑफ दैट नोएडा पीछे रह गया जी। इवन इफ कि उस टाइम पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा का फार सुपीरियर था गुड़गांव से, बट वो लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा फैक्टर था जो हमेशा यहाँ पे लोगों को आने की तरफ, परसेप्शन की तरफ खराब कर देता था। बिल्कुल। सो आई थिंक वो अब नोएडा में पिछले 10 साल से कम्प्लीटली चेंज हो गया है विद गवर्नमेंट एफर्ट्स, with people moving in the right direction, with lot of companies moving in here, and there are enough examples on the expressway and Noida extension. So it itself is a big evidence, because कोई भी बड़ी कंपनी अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बिना नहीं आती है, बिल्कुल नहीं। और अगर उनकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होगी तो वो हमारे को एज अ नॉर्मल लेमैन बहुत सपोर्ट करता है डिसीजन लेने में। As we can see the story of Noida, आपके विजन में स्टोरी ऑफ नोएडा क्या है? तो पहले नोएडा आपने देखा और अब अगले 5-6 सालों में नोएडा को कहाँ देखते हैं? नोएडा मेरे हिसाब से अगले 5-6 साल की तो बात ही नहीं है। नोएडा तो अगले 5-6 साल नोएडा आज अचीव कर चुका है। अच्छा। यस, अगर आप प्राइजेस को देखोगे,
आप कंपनीज की मूवमेंट को देखोगे, आप यहाँ पे एंड कस्टमर्स की एक्चुअल पोजीशन को देखोगे जो वो ले चुके हैं और शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत पहले नोएडा 5 साल पीछे था जी, अब वो 5 साल आगे हो गया। तो Cover up कर लिया है उसने। नोएडा ने 5 भी कवर करे, 0 से 5 आगे बढ़ भी गए। जो आज की जनरेशन है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपील करता है। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। तो आज वो महंगे घर नहीं ले पा रहे हैं, बट उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो वो महंगा घर भी लेने को बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस लाइक कि आज अगर आपकी हिम्मत एक गाड़ी लेने की है जो जी। 15 लाख रुपए की है जी, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस गाड़ी के अंदर थोड़ा बेटर मिल जाए तो आप 15 से बिल्कुल, इमीडिएटली बिल्कुल। 18 में शिफ्ट कर जाते नो हैं। डाउट, तो वो सब आज की जनरेशन, सिंस 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडिया राइट, is young. यस, So people who are now at that age, they've traveled the world. एग्जैक्टली, और वो They have रिस्क लेने के लिए तैयार है। enough exposure है. So for them to now, India की population जो है, they want the best for themselves because they are very clear now. This is what we deserve. सर, रेरा एंड नोएडा क्या कनेक्शन है? क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेरा नोएडा की वजह से आया और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हैं, हालांकि बायर्स काफी खुश हैं। See, बहुत टाइम पहले जब नोएडा शुरू हुआ था जी। तो तब एक रूल था कि आप लैंड की एक पार्शियल पेमेंट करिए एंड देन यू कैन लॉन्च एंड सेल इट टू द कस्टमर्स। सो वहाँ पे कुछ डेवलपर्स ने अपना रास्ता खो दिया और लोगों के पैसे फंस गए। जी, सो मेरे हिसाब से तो अगर नोएडा ने कुछ रेगुलेशन बनाने में कंट्री की हेल्प करी है, सो इट्स अ फैंटास्टिक एग्जैक्टली, क्योंकि बाकी देश के बायर्स काफी खुश हैं, इट्स अ मतलब फैंटास्टिक फेदर ऑन द Right. कैप। सो आज अच्छी बात है, मैंने जैसे आपको बोला पॉजिटिव सोचना चाहिए। सो अगर कुछ खराब हुआ है तो नोएडा में करेक्ट हो गया, तो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन एज नोएडा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज की ढेर सारी बातों से आपने ये तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस साल नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट कुछ कमाल धमाल बेमिसाल करने वाला है। आईटी हब की बात करें, आने वाले एयरपोर्ट की बात करें और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो नोएडा बूम 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 करने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में आपको क्या देखना है ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा।